Hi, welcome back to my channel. Hope you all are doing really well. I'm making like a sit down video after ages I feel. या तो मैंने vlogs बनाए हैं in the last year या फिर I've made travel videos. It's been so long मैंने ऐसे बैठ के video बनाया हो. So the latest update is that I've moved to London for my LLM. I'm doing my masters basically from London. And if you're watching this video, I feel that you are just like me. Probably 4 months back, maybe ऐसे YouTube पे बैठी रहती थी पूरा time. I used to see लोगों के video, I used to see पैकिंग के बारे में वीडियोस, अपार्टमेंट्स के बारे में वीडियोस, अकोमोडेशंस के बारे में, थिंग्स टू डू, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितना कुछ. एंड इट्स अ वेरी टफ टास्क. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज आई एम गोना स्टार्ट लाइक अ सीरीज वेयर द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इनिशियली मैं वो सब कवर करूंगी अपने वीडियोस में, सो दैट आई कैन हेल्प यू all the people who are coming to the UK in January and September intake. So in this video, I'm going to go category by category, things that you need to pack if you're planning to move to UK for your studies. So हम एक category cover करेंगे so that you can like take your diary, make notes and everything is much easy for you to understand. सबसे पहले let's talk about कितना luggage you can actually take, how much weight you're allowed, how to go about the bags. So the thing is, वैसे you are allowed to take 23 kg के 2 bags, but many airlines, like my airlines was Virgin Atlantic, उसकी भी कुछ flights है, British की कुछ flights है, but not all flights, they permit the students to take 3 bags of 23 kgs. Now coming to the hand bag, आप एक cabin bag लेके जा सकते हो. cabin bag में आपका छोटा जो cabin bag आता है वो आता है या फिर backpack आता है. I'll suggest you to take like a small cabin bag because आप वहां से अगर there are so many places to cover, आप लंदन में हो तो आप बर्मिंगम जा रहे हो, एडिनबरा जा रहे हो, there are so many places to cover. You'll have like a small bag जिससे आप easily you can travel for short trips, 1-2 दिन की ट्रिप पे लेके जा सकते हो. एंड लड़कियों का जो हैंड बैग होता है या फिर स्लिंग होता है, that does not come in the category of cabin bag. So what I did was I took like a cabin bag and my tote साथ में. Let's go to the second category, that's clothing. Now I'll tell you, to be honest with you, London की ठंड is very very different from Delhi की ठंड if you're from Delhi, and I believe all over India की ठंड. London gets super cold and especially in December, January it's like crazy. ठीक है, तो my suggestion is going to be you need बहुत सारा सामान जो important होगा, तो don't fill your bag with too many clothes. अगर आपके पास लिटरली माइनस के कपड़े हैं, वैसी वाली ठंड के कपड़े हैं, बिलो 5 डिग्री वाले कपड़े हैं, सो गेट देम. ठीक है, अगर नहीं है तो आई सजेस्ट यू टू बाय लाइक अ फ्यू थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट ठंड में फ्रॉम लंदन इटसेल्फ. नाउ अ फ्यू थिंग्स इफ यू ऑलरेडी हैव, डू कीप देम. मैं अपनी चीजें बता देती हूँ मैं क्या क्या लेके गई थी. एंड ऑनेस्टली आई वाज वेरी सेंसिबल इन दिस. मैं कोई ऐसे कपड़े लेके नहीं गई जिन्होंने मुझे इवेंचुअली मुझे लगाओ कि कितनी यूजलेस सामान ले आई हूँ, ये हेल्प नहीं कर रहे मुझे. Number one thing is that if you want to buy warmers from Uniqlo. They're like super warm. And London maybe most people they do buy things from Uniqlo. Uniqlo के जो अल्ट्रा हीट टेक आते हैं जो इनके एक्सट्रीम माइनस की ठंड के लिए वार्मर्स हैं, वो जरूर ले लेना. ठीक है, अगर आपके पास पहले से है तो अमेजिंग, वो लेके जाना अपने साथ. मैंने तो क्या कहते हैं, मेरे पास पहले से थे, मैंने उसके लोअर वाले वार्मर्स भी लंदन से ले लिए थे. कमिंग टू स्वेटर्स, इफ यू हैव लाइक वार्म स्वेटर्स तो आप 3 या 4 स्वेटर्स रख लेना. 2 to 3 भी रख सकते हो इफ यू हैव इन योर माइंड दैट यू वांट टू शॉप फ्रॉम देयर. मैं बहुत कम स्वेटर्स लेके गई थी. आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम लंदन. वार्मर्स मेरे पास थे यूनिक्लो के, मैं वो ले गई थी. थोड़े बहुत मैंने वहां से वापस ले लिए थे. अगेन जैकेट्स, डोंट कीप लाइक फैशन जैकेट्स. ठीक है, इफ यू हैव लाइक रियली वार्म पफर जैकेट्स that will help you in the cold weather, so you can keep like 2 jackets maybe, 3 jackets maybe, and then बाकी की shopping आप वहां पे कर सकते हो because वहां की ठंड is too much. Another suggestion is वहां पे people dress up too much in London, so I carried a lot of coats and blazers. If you have like a few smart coats, नहीं आप वहां से ले लेना because इतना इंडिया में कोट्स का ट्रेंड नहीं है. मेरे पास है, आई एम लाइक फॉन्ड ऑफ सच थिंग्स, तो मेरे पास थी पहले से, तो मैं अपने कोट्स, ठीक है, ट्रेंच कोट्स, शॉर्ट कोट्स, ये सब लेके चली गई थी. एंड दे डिड हेल्प मी बिकॉज मैं लेयरिंग कर लेती थी अंदर. अगर आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव टू बाय, वहां पे मिल जाएगा. वहां पे यू हैव अ लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस, और प्राइस का कोट्स वगैरह में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है. Another thing, I used to see so many people wearing, especially जब ऐसा मौसम था ना जहाँ पे wind was too strong and it was raining at the same time, I used to see so many people wearing trench coats all the time. And I got another pair of trench coats from London only. It really helps you वहां की ठंडी हवा में. तो आप ट्रेंच कोट अगर है तो लेके जाना, अगर नहीं है वहां से जरूर लेना. जब वहां पे बारिश का टाइम होता है, ट्रेंच कोट हेल्प्स यू अ लॉट. नाउ अनदर थिंग, जब वहां पे
दिसंबर का टाइम आ जाता है, नवंबर एंड का टाइम आ जाता है, इट गेट्स वेरी कोल्ड, हवा इज वेरी वेरी तेज, तो ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, वो सब वहीं से लेना। कैप की जरूरत पड़ेगी, यहाँ की फैशन कैप नहीं, एक वार्म कैप लेना। मैंने अगेन यूनिक्लो की कैप ली थी, यूनिक्लो से ग्लव्स लिए थे। मैं अपने कुछ ग्लव्स यहाँ से भी ले गई थी, बट वो इतने वार्म नहीं थे। इफ यू ऑलरेडी हैव स्टफ दैट इज फॉर वेरी कोल्ड वेदर, तो आप यहाँ से ले जाना। Another thing is sport shoes are extremely important. मैंने स्टूपिडिटी की थी, मैं एक ही पेयर लेके गई थी, बाकी मैं अपने फैशन शूज, ब्रांडेड शूज, ये सब चीजें ले गई थी। डोंट डू दिस स्टूपिडिटी। यस, you do need fashion shoes at times when you're going to the college maybe, or you're going out with your friends, but यहाँ पे you have to walk so much that sports shoes are everything. मैंने जाके वहां से 2-3 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज लिए हैं, एक मैं पहले से लेके गई थी अपने साथ, वो तो आई जस्ट गॉट। यू जस्ट नीड एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, कि एक गंदे हो जाए, बारिश में भीग जाए, कुछ हो जाए, you're washing them, तो दूसरा आपके पास हो। Another thing, formals. So the thing is that यहाँ पे ना काफी जगहों पे होता है, if you're planning to work, तो you need formals, तो या तो वहां से ले लो या यहाँ से ले जाना। पैंट्स हो गए, शर्ट हो गया, शूज हो गए फॉर्मल। There are few restaurants and places that you go for dinner to, you are not allowed entry without formal clothing. So guys, you need like a blazer, a shirt, pants, shoes उस टाइप के। तो अगर वहां से लेने का प्लान है वहीं से ले लेना, बट काफी जगह if you're planning to go for clubbing या फिर dinner, they don't allow you without formal. Same for girls, if they're planning to work or they're planning to go for dinners किस ऐसी जगह पे, you need a bit formal clothing. तो ये सब you can manage वहां से या यहाँ से लेके जाना है, बट ये सब लेके जाने के चक्कर में ना अपना बैग भरते मत जाना, मैं कहूंगी वहीं से लेना। मैं ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लेके गई थी, मैंने कपड़े बिल्कुल मिनिमम रखे थे। आई डिड लॉट्स ऑफ शॉपिंग वहां पे, थोड़ा कभी 19-20 का फर्क पड़ता है प्राइस में, बट इट विल सेव you the extra baggage. Now let's go on to the next category, that's medication. Now medication, getting your medication is super important. What I did was, and I'll suggest you to do the same thing, मैं अपने ENT के पास, अपने स्टमक के डॉक्टर के पास, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास और अपनी डर्मैट के पास चली गई थी। मैंने 4 बॉक्सेस बनाए थे अपनी दवाइयों के, मैं चारों के पास गई थी, मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनवाई थी, बिल लिया था फार्मेसी से, और उनकी मेडिसिन के ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना लिए थे। इट हेल्प्स यू कि अगर बाय चांस ऐसे होती नहीं है, अगर चेकिंग वगैरह हो जाए आपके बैग्स की, तो यू हैव प्रूफ कि आप इतनी मेडिसिन क्यों कैरी कर रहे हो, बिल है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है। दूसरी चीज ये है, व्हेन यू फाइंडिंग योर मेडिसिन, इट गिव्स यू लाइक, वो छोटे छोटे बैग्स आते हैं ना अमेजोन में, उनको लेबल करके ले जाना, बिकॉज जब आप ढूंढ रहे हो, आप सारी दवाइयों में घुस नहीं सकते, इतनी सारी दवाइयां होती हैं। सो इट मेक्स योर जॉब मच ईजियर। नाउ डोंट मिस ऑन योर मेडिकेशन, बेसिक मेडिसिन तो लेके भी जाना, बट इफ यू हैव एनी एलर्जी, कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ होता है, ठंड से सेंसिटिव हो, डॉक्टर्स को पता होता है लंदन की ठंड के हिसाब से आपको चीजें दे देते हैं सब कुछ, और क्या आपको जरूरत पड़ सकती है। नाउ व्हाट हैपेंड विद मी वाज, टेक दिस वेरी सीरियसली, वहां पे ठंड इतनी ज्यादा है कि आपको ठंड लग जाती है, आपको रियलाइज भी नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर आई स्टार्टेड हैविंग चेस्ट पेन एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज हो क्यों रहा है, ठीक है। इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज, आई कॉन्टैक्टेड माई डॉक्टर दैट ये मुझे ठंड की वजह से हो रहा है। सो ही हैड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड मी मेडिसिन जो इस चीज को क्योर करता है। बेसिकली ठंड की वजह से ना चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, वहां की ठंड इज वेरी बैड। ऑलरेडी हैड मेडिसिन, सो आई यूज्ड टू कॉन्टैक्ट हिम ओवर व्हाट्सएप, उन्होंने बता दिया था क्या क्या लेना है, और मेरे लिए बड़ा इजी था, वरना क्या करना पड़ता है मुझे, आई हैड टू गो टू डॉक्टर्स, और चेस्ट पेन से वैसे ही पीपल गेट वरिड कि वो क्या हो गया। सो मेडिकेशन को टेक वेरी सीरियसली, अपना पूरे बॉक्सेस बना के आना, कम ऑल सॉर्टेड। Another thing, the weather is very cold, so your body and your face tends to get very dry. So अपने face के लिए एक moisturizer, अपनी body के लिए and lips के लिए like a Vaseline or a chapstick. Keep it, or you can even buy it from here because things are like almost the same price. यहाँ पे Boots है, Boots has many affordable options also. बोलने की बात है कि हाँ सब महंगा है, ऐसा नहीं है, अभी things are very expensive but everything is not expensive. So यहाँ पे बहुत चीजें हैं that you'll get probably for the same price. तो अगर आपका कोई particular मॉइस्चराइजर्स है तो वो ले आना, अगर ऐसा है कि वहां भी मिल सकता है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर ऑल्सो, एंड वैसलीन तो हर जगह ही मिलता है। टॉयलेटरीज ऑल्सो, पीपल से एवरीथिंग इज टू एक्सपेंसिव लंडन, बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कुछ नहीं लेके आई थी अपनी टॉयलेटरी, शार जेल, शैम्पूज, टूथपेस्ट, ब्रश, मैंने सब कुछ यहाँ से लिया था, और प्राइस में कोई फर्क नहीं है। अगर एक्सपेंसिव ऑप्शंस है तो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं, सो कीप दिस इन माइंड। बट येस, इफ यू हैव समथिंग पर्टिकुलर दैट यू यूज बैक इन इंडिया और योर होम कंट्री, देन ऑब्वियसली आप वहीं से लेके आओ, थोड़ी जगह लेगा बट यू विल हैव द satisfaction in your head.
जो क्लोथ्स वॉश करने का होता है, अब मैंने ये क्या किया था कि जो सर्फ की वो टिक्कियां टाइप आती है एंड पाउडर आता है, गॉट इट, बट दैट वाज ऑनेस्टली ऑफ नो यूज टू मी बिकॉज आई हैव अ वॉशिंग मशीन इन माई अपार्टमेंट. आई यूज वो लिक्विड वॉश एंड आई यूज साथ में वो कपड़ों का कंडीशनर होता है, टैब्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, वो सब यूज करती हूँ. तो मेरा सामान ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है जो मैं लेके आई हूँ. बट अगेन अगर आपके कुछ कपड़े हैं यू यूज, तो आपको ब्रश ले आना, वो जो सोप होता है सर्फ वाला पाउडर टाइप और टिक्की होता है वो अपना ले आना इफ यू वॉन्ट टू वॉश अ फ्यू थिंग्स योर सेल्फ. अनदर थिंग, अडेप्टर, वो जो ट्रैवलिंग अडेप्टर होता है वो लाना. आई गॉट 4 to 5 बिकॉज मुझे था कि वहां पे मिले, क्यों लूं मैं जब मेरे पास इतने सारे घर पे पड़े हुए हैं. एंड आई ऑल्सो गॉट Amazon में ना एक ही मिलती है, इतना अवेलेबल नहीं है यहाँ पे. आई गॉट दैट एक्सटेंशन वायर ऑल्सो विद दैट यूनिवर्सल अडेप्टर. तो उसमें व्हाट आई हैव इज व्हाट आई डू इन माई रूम इज, एक तरफ मैंने एक अडेप्टर लगाया हुआ है, दूसरी तरफ एक्सटेंशन वायर लगाए हुए हैं और कुछ मैंने अपने बैग में बैकअप के लिए रखे हुए. नाउ मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज किचन एंड फूड. सो दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, यहाँ पे इंडियन मसाले बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, जो मिलते हैं या तो वो इतने आउटस्कर्ट्स में मिलते हैं, सेंट्रल लंदन के बाहर मिलते हैं. इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स ढूंढना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, तो अपने जो इंपॉर्टेंट मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे क्वांटिटी में स्टॉक में लेके आना. जो बेसिक मसाले हैं आप वो तो लेके ही आना, बट व्हेन यू मेक लाइक प्रॉपर डिशेस जैसे चिकन हो गया, सब्जियां हो गई, तो यू नीड बहुत सारे मसाले. तो 3 कैटेगरीज में अपने मसालों को सेपरेट कर देना. बेसिक, स्पेशल मसाले जैसे आपने चिकन मसाला हो गया, राजमा मसाला हो गया, फिश सब्जी पुलाव, एंड खड़े मसाले इफ यू डू लाइक वेरी प्रो कुकिंग, जो मैं आजकल ऑनेस्टली करने लग गई हूँ यहाँ पे रह के. तो आपके जैसे वो दालचीनी वगैरह हो गया, तेज पत्ता हो गया, ब्लैक पेपर के वो जो बड़े बड़े वो होते हैं दाने होते हैं, एवरीथिंग, वो जो खड़े मसाले होते हैं. सो यू कैन divide your food into 3 categories. Now I don't eat roti at all, I hate roti, but there are people who love roti. Most Indians love roti. तो अपना आटा थोड़ा ले आना पोर्शन में. आटा यहाँ पे ढूंढना is very difficult. अपना बेसन, पोहा, जो स्पेसिफिक इंडियन चीज है that you really like, do get it. I did not get it. मैं अपने सिर्फ मसाले लेके आई थी, साथ में राजमा के 2-3 पैकेट्स लेके आई थी, दाल के 1-2 पैकेट्स लाई थी. राजमा ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा किसी ग्रोसरी स्टोर में, बट दाल इज वेरी कॉमन, दाल आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पे. सो डू रिमेंबर, मसाले तो आप 2 से 3 पैकेट जितना आपको लगता है, बस ओवरवेट मत कर लेना बैग, बट जितना ला सको मसाले तो अच्छी क्वांटिटी में आप लेके आना. अनदर थिंग इज अंडर द फूड कैटेगरी इज रेडी टू ईट कैटेगरी. जैसे कितनी सारी रेडी टू ईट कैटेगरी में आता है, जैसे हल्दीराम का खाना है. ठीक है, मैं हल्दीराम का पनीर आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि उसका पनीर गेट्स वेरी ड्राई. उनका पनीर 2 टाइप के पनीर है, कढ़ाई पनीर टाइप है, एक मखनी पनीर टाइप है. दोनों में आई हैव नॉट टच हल्दीराम का एक भी पनीर का अपना फूड पैकेट, बिकॉज वो पनीर इज वेरी हार्ड एंड इट इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमिंग. बट दाल इज गुड, उसकी हैदराबादी बिरयानी इज गुड, आलू इज गुड, देयर आर मेनी ऑप्शंस. एक सर्टेन अमाउंट में ले आना. ऑल्सो आई तो लव मैगी, आई गॉट मैगी ऑल्सो, मैगी मसाला ऑल्सो. कुरकुरे के पैकेट्स में भूल गई थी, प्लीज लेके आना, पीपल हु लव कुरकुरे, ब्लू लेस. अनदर थिंग इज, नॉट मेनी पीपल टेल यू दिस, इंडियन रेडी टू ईट फूड ना यहाँ पे भी मिलता है, बट सबको पता नहीं है कहाँ मिलता है. जैसे Amazon में मिलता है. ठीक है, Amazon के ग्रोसरी स्टोर्स है ना, वहां पे Amazon फ्रेश वहां पे मिलता है. मॉरिसन्स कह रही हूँ, वेट्रोज में मिलता है. ठीक है, यू गेट मॉरिसन्स में बहुत सारी इंडियन चीजें, जैसे पिकल, आई लव पिकल, तो पिकल मिल जाता है वहां पे. आई वॉज वेरी शॉक टू सी पिकल मिल जाता है. आइसलैंड में पिकल मिल जाता है. सो देर आर थिंग्स दैट यू गेट इन दीज ग्रोसरी स्टोर्स दैट आर नियर योर प्लेस. तो एंड जो रेडी टू ईट खाना, जैसे यू वांट चिकन, ठीक है, तो मैंने अदर डे आई गॉट कोई पता नहीं चिकन की लबाबदार चिकन की कोई डिश थी फ्रॉम वेट्रोज. आई गॉट दैट वाज फॉर लाइक £4 or £5. It is a bit expensive obviously as compared to your Indian ready to eat, but obviously it's non-veg as well and it's London as well. ऑल्सो यहाँ पे टेस्को की मील डील्स, M&S की मील डील्स, प्रॉब्ली हर ग्रोसरी स्टोर में मील डील्स भी होती है. सो जैसे आपको £4 में, £5 में यू गेट लाइक अ मेन कोर्स, a snack and a beverage also. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे food is expensive. There are alternatives also कि कभी you are tired, you're coming from your college या फिर your job and आपका मन नहीं है कुक करने का, तो you can get these meal deals also. जैसे टेस्को के meal deals में wraps are nice, कूप है यहाँ पे, उसके wraps are nice, M&S का food is really nice, their pastas are nice. So there are meal deals also and you get like a proper meal, अपने थोड़ा जुगाड़ू meal type in a very decent price. So there are days आपका ready to eat खाने का मन नहीं है तो आप एक meal deal का सामान ले आया करो. So there are a lot of options here also. तो ready to eat इतना भी मत भरना. Now a small category of your kitchen is utensils. अब ना यहाँ पे honestly सब कुछ मिलता है, ऑनलाइन मिलता है या फिर स्टोर्स में मिलता है, बट I'll tell you what I got. मैं 2 पैन्स, एक छोटा पैन, एक बड़ा पैन और एक छोटा कुकर ले आई थी. वैसे सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे. मैं ये 3 चीजें लेके आई थी एंड आई हैड लाइक एन अपार्टमेंट, तो मैं फ्यू प्लेट्स,
थोड़े स्पून्स, फोक्स, ये सब चीजें ले आई थी। बाकी सब कुछ मैंने वहां से लिया, ब्लेंडर मैंने वहां से लिया, बोल्स मैंने वहां से लिए, सब कुछ मैंने वहां से लिया। एंड अनदर थिंग इज, Amazon पे ना यूटेंसिल्स का एक पैक मिलता है 10-12 चीजों का। सो यू हैव योर विस्क करने वाला, टोंग है उसमें, टी स्ट्रेनर है, ऐसी बहुत सारी एसेंशियल चीजें होती है, ग्राइंडर टाइप होता है, वो सब चीजों का सेट होता है। दैट्स वेरी चीप। तो ये चीजें माइट बी अ बिट एक्सपेंसिव, बिट क्या, थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी लंदन में, तो ये सेट जरूर ले लेना। लेकिन बाकी ये सारी जो चीजें, पैन हो गया, कुकर हो गया, आपकी कढ़ाई हो गई, सॉस पैन हो गया, यू कैन बाय फ्रॉम लंदन। प्राइस में 19-20 का फर्क होगा। हाँ, आपके पास जगह है एंड यू फील कि मुझे ये लेके जाना है तो ये ले जाना आप, बट यू गेट ऑल ऑफ दिस। बट वो सेट जरूर ले लेना Amazon से, वो मैं रिकमेंड जरूर करूंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बेडिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी यहाँ से। मैं सिर्फ 2 टाल्स लेके गई थी, एक बेडशीट का सेट लेके गई थी विद पिलो कवर्स। मैंने सब कुछ वहां से ही लिया। सो वहां पे इज वेरी कोल्ड, सो व्हाट आई एडवाइज यू इज टू बाय लाइक अ डुएट 13 या 15 टॉक की। एंड जो आपके पिलो कवर्स हैं, बेड शीट्स है, डुए कवर्स है, सब कुछ वहां से लेना। देर आर अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑल्सो एंड देर आर प्रीमियम ऑप्शंस ऑल्सो। सो देर आर options like Argos, Primark, ये सब अफोर्डेबल है। एंड इफ यू वांट टू गो इन द प्रीमियम रेंज, देन जॉन लुइस है, आपका क्या कहते हैं, M&S है। सो देर आर मेनी ऑप्शंस, तो यू कैन रेंज वहां पे। यहाँ से लेके जाने का ब्लैंकेट्स, पिल्लोज, कोई फायदा नहीं है। पिल्लोज भी वहां से लेना, मैंने पिल्लोज तक वहां से लिए थे, सब वहां से लिया मैंने। ये तो मैं ऐसे ही ले गई थी जस्ट फॉर बैकअप इन केस आई नीड समथिंग। एंड इन केस फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट रात को लैंड कर रही है, तो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट ऑर्डर एवरीथिंग ऑनलाइन एंड दे विल डिलीवर नीचे कॉन्सियाज के पास। या फिर आपकी स्टूडेंट अकोमोडेशन है तो अकोमोडेशन की जो कॉन्सियाज रिसेप्शन होती है वहां पे वो डिलीवर कर देंगे। बट दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ स्पेस एंड प्राइस का जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वहां की कोई इतना फर्क नहीं होगा। एंड ये चीजें बहुत जगह लेती है, तो आई विल नेवर रिकमेंड यू कि यहाँ से वो चीजें लेके जाओ। Another thing is carrying an umbrella is very important. People will tell you कि umbrella वहां पे मिल जाता है। ट्रू, वहां पे मिल जाता है, टेस्को वगैरह, सेन्सबरी, हर जगह अम्ब्रेला मिलता है। बट जो अम्ब्रेला आपको Amazon पे 300-400 रुपीज का मिलता है, वो वहीं पे 800, 900, 1500, 1200 ऐसे प्राइस से मिलता है। सो डू टेक एटलीस्ट 1 अम्ब्रेला अपने साथ। अनदर कैटेगरी, अब मिनी कैटेगरी इज फोन। फोन के लिए क्या कहते हैं, अपने कवर्स इफ यू नीड स्क्रीन गार्ड, मैं ये सब नहीं लेके गई थी, मैंने सब वहां से लिया। बट ये सब चीजें ले जाना। एंड देयर इज सो मच फोन स्नैचिंग इन लंदन। तो इतना वो स्ट्रिंग्स आते हैं जो आप स्लिंग की तरह बांध सकते हो या अपने रिस्ट पे बांध सकते हो, वो चीजें जरूर लेके जाना, बिकॉज वहां बहुत ज्यादा फोन स्नैचिंग है। अनदर थिंग इज कि मैंने ना अपने फोन में क्या किया था, आई कन्वर्टेड माई ओरिजिनल सिम टू लाइक एन ए सिम। एंड मैंने अपनी दूसरी वहां पे माई लिबारा की सिम लेके इंस्टॉल कर ली थी। सो आई यूज टू यूज लाइक माई इंडियन नंबर ओनली फॉर व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग। एंड अगर आपको मैसेजेस रिसीव करने ऑन योर इंडियन नंबर, डू द सेम थिंग। सिम कार्ड वहां पे जाके देयर आर मेनी अफोर्डेबल ऑप्शंस। आई डिड काइंड ऑफ अ स्टूपिडिटी, मैंने माई लिबारा लिया था, इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव वहां पे, बट आई डिड नॉट चेंज माई सिम ऑल्सो लेटर ऑन बिकॉज आई थॉट कि जो है सो है। बट जैसे वॉक्सी है एंड देयर आर मेनी मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस, तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। कमिंग टू द कार्ड दैट यू नीड टू कैरी, वन इज योर फॉरेक्स कार्ड एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू कैरी 1 क्रेडिट कार्ड। एंड आई ऑनेस्टली कैरिड मेरी डेबिट कार्ड्स भी साथ में। सो फॉरेक्स कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहां पे जाके गेट लाइक योर बैंक अकाउंट मेड, या तो Monzo बनवा लेना, Lloyds बनवा लेना, HSBC, देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड दैट्स लाइक मोर कन्वीनियंट बिकॉज जो आपका कैश होगा उसे आप उसमें डलवा लेना। एंड यहाँ पे कैश का कोई काम नहीं है लंदन में, एवरीथिंग इज कैशलेस। सो आई जस्ट सजेस्ट यू टू कीप थोड़ा सा कैश अपने बैकअप के लिए, इमरजेंसी के लिए, बाकी टाइम जस्ट यूज कार्ड्स। What I'm going to suggest you guys is that मैंने आपको जो भी बताया है एंड अपनी जो भी आप पैकिंग कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेक लाइक अ लिस्ट ऑफ दिस, राइट एवरीथिंग डाउन एंड जैसे जैसे अपने बैग में डालते रहो ना, तो उस पर टिक मारते रहना। एंड जब सब कुछ पैकिंग हो जाए तो ना वो एक वेट करने वाला आता है, बैग्स को वेट करने वाला छोटा सा डिवाइस होता है, वो जरूर लेके सब कुछ वेट कर लेना। कभी कभार उससे 19-20 का डिफरेंस हो सकता है, बट दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। एंड दैट्स इट। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक it, and if you're new to my channel, do subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends and family, and see you very soon. Bye bye.